الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. ہم قرآن کریم کی آخری صورتوں کی تفسیر دے رہے ہیں، جس میں ہم نے سابقہ درس میں سورۃ الم نشرح کی تفسیر لی تھی. آج اس سے پہلے والی سورۃ الضحیٰ، اس کی تفسیر لینے جاتے ہیں انشاءاللہ. اور سورۃ الضحیٰ بھی ان صورتوں میں سے ہے کہ جو خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں نازل ہوئی، کہ جس میں آپ ہی کو مخاطب کیا گیا ہے اور آپ کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اس دور میں، ان حالات میں کہ جب دشمنوں کی طرف سے آپ کو سخت اذیتوں کا، تکلیفوں کا سامنا تھا. تو جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے کوئی ایسی آیات، ایسی صورتیں نازل فرماتا رہتا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی ہو، اور اس وحی کے ساتھ، اس وحی کی وجہ سے آپ کو مزید دعوت کے اس میدان میں چلنے میں آپ کو ہمت ہو. اور کوئی شک نہیں کہ اس طرح کی کیفیتوں میں جب چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا آنا ایک بہت اہم چیز ہے، اور جس سے ایک داعی حق جو ہے اس کی رہنمائی بھی ہوتی ہے، اور مزید یہ کہ اس کو اللہ کی طرف سے بشارتیں، خوشخبریاں ملتی ہیں اپنے اس کام پر. تو یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھتے ہیں. تو سورۃ الضحیٰ بھی انہی صورتوں میں سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، بہت قسم کی قسم ہے ضحیٰ کی. ضحیٰ کیا ہوتا ہے؟ ہم نماز کو نام دیتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. کون سی نماز ہے؟ چاشت کی نماز، کہ جو سورج کی دھوپ تیز ہونے پر پڑ جاتی ہے، تو اسی سے یہ ضحیٰ ہے. تو ضحیٰ کا معنی دھوپ کا تیز ہو جانا، سورج کا چڑھ آنا. واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، متضاد چیزیں ہیں جن کی اللہ قسم کھاتا ہے، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک طرف، اس کی چمک، اس کی روشنی، اور دوسری طرف کفر کی جہالتیں اور شرک کے اندھیرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح یہ دونوں برابر نہیں، جس طرح سورج کی تیز دھوپ اور رات کا اندھیرا برابر نہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق اور اس کے مد مقابل کفر و شرک کے اندھیرے دونوں برابر نہیں. ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک، آپ کو چھوڑا نہیں، ربک، تیرے رب نے، وما قلی، اور نہ آپ سے بیزار ہوا ہے. اس آیت کے بارے میں تفاسیر میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ دن تک وحی نازل نہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی وحی نازل ہوتی، آپ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے، اس وحی کو لوگوں کو سناتے. اور لوگ کون تھے؟ مکہ میں زیادہ تر مشرک کافر تھے، اگرچہ وہ سننا تو نہیں چاہتے تھے اور ان کو سننا ناگوار ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اپناتے ہوئے آپ لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے. جس طرح کہ ہمارے اکثر بیشتر لوگوں کا حال ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش ہوتی ہے، چاہے اللہ ناراض بھی ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ان کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہوتی ہے کہ اللہ کس چیز میں راضی ہے، اللہ کا حکم کیا ہے. لوگ خوش ہو، ناراض ہو، ان کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے جو وحی آتی، مکہ کے مشرکوں کافروں کو پڑھ کے سناتے تاکہ ان پر حجت قائم ہو، اور جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے تاکہ وہ ہدایت پا لے.
تو जब आप पर वही ना आई चंद दिन तक, तो ज़ाहिर बात है आपने लोगों को कोई नई वही ना सुनाई। उस पर जो है तरह तरह की चेमोनियाँ शुरू होती हैं, आपको बल्कि ताने दिए जाते हैं। किसी ने कहा कि लगता है कि तुम्हारा रब जो है तुम्हें छोड़ गया है, तुमसे नाराज़ हो गया है कि जो तुम पर वही नहीं आ रही। और किसी बदबख्त ने ये भी कह दिया कि तुम्हारा शैतान तुम्हारा साथ छोड़ गया है, नऊज़ बिल्लाह। क्योंकि उनकी नज़रों में तो यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुनाते बताते हैं ये शैतान की तरफ से है, नऊज़ बिल्लाह। तो इस तरह की एक तो वही का ना आना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी परेशान कुन चीज़ थी, जिसे मैंने पहले जिक्र किया है कि इस तरह के सख्ती के हालात में अल्लाह की तरफ से वही जो है वो एक दाई हक के, एक नबी रसूल के लिए बहुत बड़ा हौसला होता है उसके अंदर कि अल्लाह ताला उसके साथ है, अल्लाह उसकी रहनुमाई कर रहा है। लेकिन वही का बंद हो जाना ही आपके लिए बड़ी परेशान कुन चीज़ थी, और ऊपर से दुश्मनों की ताने भी, उनकी तानो तशनी और भी ज़्यादा परेशान कुन थी। तो उस पर जब कुछ दिन के बाद वही नाज़िल होती है, ये सूरत नाज़िल हुई, तो अल्लाह ने फरमाया कि तेरे रब ने तुझको छोड़ा नहीं और ना तुझसे बेजार हुआ है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने आपके लिए फिर आपको खुशखबरियाँ सुनाई, बशारतें दी। किस बात की? वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, कि यकीनन आपके लिए आगे आने वाला वक़्त जो है वो पहले वक़्त से बेहतर होगा, खैर का होगा। इसमें आने वाला वक़्त दुनिया के अंदर भी आप जिन हालात से गुज़र रहे हो, तंगदस्ती के हालात हैं, तरह तरह की दुश्मनियाँ हैं, मुखालफतें हैं, काफ़िरों की तरफ से अज़ीज़ें हैं, आपके सहाबा को शहीद किया जा रहा है, मारपीट हो रही है, यानी बड़े संगीन हालात हैं। तो ये हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, बल्कि हालात बदलेंगे और आने वाले दिन आपके लिए पहले दिनों से बेहतर होंगे। और ये वो हकीकत है कि जो तारीख बताती है कि कहाँ पर मक्का का वो ज़माना कि जब मुसलमान छुप छुप कर नमाज़ें पढ़ते थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दार अरकम के जो सफ़ा पहाड़ी के ऊपर था, काफ़िरों की नज़र से ओझल होकर वहाँ पर जाकर सहाबा के साथ बैठते, नमाज़ें पढ़ते। और कहाँ मदीना मुनव्वरा में आपकी सल्तनत कायम होना और अरब के मशरक़ व मग़रिब में, बल्कि अरब क्या पूरी दुनिया के मशरक़ व मग़रिब में आपकी दावत फैल रही है, इस्लाम का झंडा गड़ रहा है और फतूहात हो रही हैं। तो कहाँ पर वो दिन और कहाँ पर मक्का के ये दिन कि जिसमें इस्लाम घरों के अंदर, कमरों के अंदर सिमटा हुआ था, छुपा हुआ था। और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगरचे बशारत खुशखबरी है, लेकिन हर इंसान के लिए इसमें बड़ा हौसला अफजा अल्लाह की तरफ से पैगाम है कि अगर मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं या दुश्मनान दीन की तरफ से उनका कोई गलबा होता है, तो इससे आप परेशान ना हो। और दिन बदलते हैं, अल्लाह ताला दिनों को फेरता है, और वो दिन दूर नहीं कि जब अल्लाह ताला तुमको जो है गलबा देगा, तो आने वाला वक़्त आपके लिए पहले वक़्त से बेहतर होगा, दुनिया के अंदर भी। और अगर दुनिया आखिरत का मुवाज़ना किया जाए उस लिहाज से भी कि आपकी आखिरत जो है दुनिया से बहुत बेहतर होगी, और इसमें कोई शक नहीं। ना कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बल्कि हर मोमिन मुसलमान की। दुनिया उसके मुसलमान के लिए क्या है? सिजनुल मुमिन, कि दुनिया जो है मोमिन का कैद खाना है, जेल है। अगर से उसको बड़ी नेमतें मिली हों, लेकिन फिर भी आखिरत में जन्नत की नेमतों के मुकाबले में हकीकत में ये कुछ भी नहीं है। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं 9वीं सदी हिजरी के। बुखारी, सही बुखारी की सबसे बड़ी जो शरह है फतहुल बारी के नाम से उन्होंने की है। तो मिस्र के चीफ जस्टिस थे, तो चीफ जस्टिस का ओहदा, और ख़ास तौर पर साबका ज़मानों में चीफ जस्टिस हकीकत में हुक्मरान के बाद उसका ओहदा होता था। मुल्क के जो फैसले हैं, जो चीज़ें हैं, सभी उसके हाथ में होती थी। तो इतने बड़े ओहदे मनसब का आदमी, उसकी क्या शान ठाट बाट होगी। तो
उस ज़माने में जो घोड़ों के चलाने वाली बिगी होती है, उस पर बैठे हुए जा रहे थे बड़ी ठाट बाट के साथ। तो रास्ते में एक यहूदी तेल बेचने वाला, उसके कपड़े तेल से लथड़े हुए और बड़ी उसकी यानी कि बुरी हालत उसकी। तो उस यहूदी ने उनकी बिगी खड़ी की और कहने लगा कि तुम्हारे नबी ने एक हदीस बयान की है, मुझे मैं समझ चाहता हूँ कि वो हदीस मुझे समझाओ, क्या हदीस है। कहने लगा तुम्हारे नबी ने कहा है कि दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया जो है मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत है। कहने लगा कि तुम मोमिन कहलाते अपने आप को मुसलमान हो और तुम किस कैद खाने में हो, तुम्हारी ये शान, ये ठाट बाट, ये कौन सा कैद खाना तुम्हारा, और मैं क्या कौन सी जन्नत में हूँ। तुम्हारे नबी के इस हदीस के मुताबिक मैं काफिर हूँ, मैं किस जन्नत में हूँ। तो इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, सुनने वाला है, फरमाते हैं कि मेरी जो तुम हालत देखते हो, ये शान व शौकत, ये ठाट बाट, ये दुनिया जो भी कुछ मिला है मुझे जन्नत के मुकाबले में फिर भी जेल है। कि जन्नत में जो अल्लाह की नेमतें हैं, जन्नत में अल्लाह ताला की तरफ से जो ऐशो इशरत है एक मोमिन के लिए, दुनिया में उसका तसव्वुर भी नहीं है। और तुम जिस बुरी तरीन हालत में हो, फ़क्र फाका है, गुर्बत है, ज़िल्लत है, रिसवाई है, इसके बावजूद भी जिस जहन्नम में जाओगे आखिरत में, उस जहन्नम के मुकाबले में फिर भी दुनिया तेरी जन्नत है। तो हकीकत ये है। तो बात कर रहे थे कि हर मोमिन के लिए ही आखिरत जो है जन्नत दुनिया से बहुत अजीम है, बहुत बेहतर है। चाहे जाए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए आखिरत किस कदर बेहतर है। सिर्फ बेहतर ही नहीं, बल्कि आपके क्या अजीम मुकामात हैं कि सारे नबी आपके झंडे के नीचे होंगे। सिर्फ आप ही की शफाअत पर बंदों के हिसाब से होंगे, किसी नबी को इसकी जरूरत नहीं होगी। आप ही सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खोलेंगे। जन्नत में सबसे ऊंचा मुकाम अगर किसी को मिलने वाला है तो आप सब की हस्ती हैं। और इस तरीके से जिस हमने जिक्र किया था सूरत अल-बशरा में कि अल्लाह ने आपको क्या क्या शान दी है। तो इसमें आता अल्लाह ताला कि आप मौजूदा हालात से परेशान ना हो। आने वाला वक्त दुनिया का भी और आखिरत का भी आपके लिए पहले से बहुत बेहतर होगा। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और यकीनन ज़रूर देगा तुमको तुम्हारा रब, हत्ता कि तुम राज़ी खुश हो जाओगे। दुनिया के अंदर भी दीन का गलबा आप अपनी आंखों से देख कर गए, बल्कि पूरे अरब का इलाका आपके हाथों फतह होता है, और अरब से बाहर भी बड़े बड़े मुल्कों तक, बादशाहों तक आपकी दावत पहुंचती है। और आखिरत में भी अल्लाह की तरफ से जो मिलने वाले इनामात हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे, तो ये अल्लाह की तरफ से इनामात अलामत है कि अल्लाह ताला तुमको वो कुछ देगा ताकि आप राज़ी खुश हो जाओगे। अब अल्लाह ने वादे किया आपसे कि आने वाला वक्त पहले से बेहतर होगा, अल्लाह ताला आपको वो कुछ देगा ताकि आप राज़ी हो जाओगे। उसके बाद अल्लाह ताला इन वादों की यकीन दहानी करवाता है। वो कैसे? मैं अलम यजिद का यतीमन फआवा, बात सिर्फ अब की नहीं है। अल्लाह ताला की तुम्हारे साथ जो अनायत है, तेरे ऊपर जो अल्लाह ताला की रहम व करम है, फजल व करम है, अल्लाह की हिफाजतें हैं, वो आज के नहीं बल्कि बचपन से लेकर चले आ रहे हैं। आज तो आप अल्लाह के नबी बन चुके हो और बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से आपको एक ड्यूटी ज़िम्मेदारी दी गई है। कैसे अल्लाह ताला अब आपका साथ छोड़ेगा? अल्लाह ने तो तुम्हारा साथ उस वक्त नहीं छोड़ा जब तुम पैदा हुए थे। मैं अलम यजिद का, क्या पाया नहीं तुमको अल्लाह ताला ने यतीमन यतीम फआवा, पस तुमको पनाह दी, ठिकाना दिया। और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जानने वाले जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे होती है। कि पैदा होते ही हैं तो बाप पैदा होने से पहले फौत हो चुका है, अभी माँ के पेट में है तो बाप फौत हो चुका, और अभी सिर्फ 6 साल के थे तो माँ भी फौत हो जाती है। माँ बाप का सहारा सर से उठ जाता है। लेकिन आम तौर पर इस तरह के बच्चे किस अंदाज से ज़ाया हो जाते हैं, जिसको हमारे कहते हैं रुल जाते हैं।
ना बाप हो ना माँ हो, उनको पुरसान हाल हो, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत के लिए किस किस तरह के इंतजाम किए। यहाँ पर अल्लाह ताला के इस वादे को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि वाकई अल्लाह ताला के वादे किस तरह सच्चे हैं। कि आपकी वालदा फौत होने के बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब जो मक्का के सरदार थे, वो जो है, हालांकि आप अभी छोटे हैं, चंद साल के हैं, लेकिन बड़ी बड़ी महफिल मजलिसों में आपको लेकर बैठते हैं अब्दुल मुत्तलिब, और कहता है कि मुझे यकीन है कि मेरा ये बेटा या मेरा पोता जो है, फिर इसको बड़ी कुछ ऊंची शान मिलने वाली है। तो इस अंदाज से आपकी इज्जत अफजाई आपके दादा की तरफ से, 8 साल के होते हैं तो आप दादा भी फौत हो जाता है। उसके बाद आपके चचा अबू तालिब ना कि सिर्फ इस बचपन में बल्कि बचपन से लेकर आपकी नबूवत मिलने के भी 10 साल बाद तक, यानी आपके 50 साल उम्र तक जो है मुसलसल अबू तालिब जो है आपकी सरपरस्ती करते हैं, आपका साथ देते हैं, और हर कदम पर हर मोड़ पर अपने बच्चों से बढ़कर आपका ख्याल रखते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से हकीकत में इस तरह के इंतजाम हो जाना, ऐसे यतीम बच्चे के जिसका माँ बाप ना हो, पता चलता है कि अल्लाह ताला की क्या इसके ऊपर अनायत है, अल्लाह ताला की क्या फजल करम है। तो अल्लाह फरमाता है अलम यजीद का यतीमन फआवा, कि अल्लाह ताला ने तुमको यतीम न पाया था तो तुमको अल्लाह ने पनाह दी, ठिकाना दिया। ववजदका ضाल्लन फहदा, और तुमको पाया था नावाकिफ़ राह, तो अल्लाह ताला ने तुमको तुम्हारी रहनुमाई की। दालन का वैसे लफ्ज़ी माना होता है गुमराह करना, गुमराह होना। गुमराह होने का माना रास्ते से यानी गुम हो जाना, रास्ता गुम हो जाना। तो अल्लाह फरमाता है कि आपको अल्लाह ताला ने पाया नावाकिफ़ राह, यानी आपको रास्ते का पता नहीं था कि रास्ते से मुराद यानी हदायत क्या होती है, ईमान क्या होता है। हमने पहले सूरत अल-मस्सा में बयान किया था कि अल्लाह ताला फरमाया कि ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, कि अल्लाह ने आपसे वो बोझ उतार दिया जिस बोझ ने आपकी कमर तोड़ रखी थी। आपको याद होगा कि बोझ क्या था, किस बोझ का जिक्र किया था हमने, आपके ऊपर क्या बोझ था? हाँ, उम्मत की इस्लाह का बोझ। जब आप देखते नबूवत से पहले लोगों को कुफ्र में, शिर्क में डूबे हुए, तरह तरह की जहालतें उनके अंदर, बद अखलाकियाँ, हर चीज़ में इंतहा को पहुँचे हुए, आप देखकर परेशान हो जाते कि इन लोगों की इस्लाह कैसे होगी, इनको किस तरह इनकी किस तरह रहनुमाई की जाए, इनको किस तरह हदायत दी जाए, क्योंकि अल्लाह की तरफ से वही नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने वही नाज़िल करके, कुरान नाज़िल करके आपकी रहनुमाई की कि किस तरह आपने खुद भी अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के दीन पर चलना है, और लोगों की भी कैसे आपने उनकी भी रहनुमाई कैसे करनी है। तो यहाँ पर भी अल्लाह फरमाता है कि आपको पाया अल्लाह ने नवाक फेरा ना, आपको खुद भी नहीं पता था कि ईमान क्या होता है। अल्लाह फरमाता है दूसरी आयत में कि मा कुन्ता तदरी मल किताब वल ईमान, कि आप नहीं जानते थे कि किताब क्या होती है, ईमान क्या होता है। तो अल्लाह ताला ने आप पर वही नाज़िल करके सारे आपको उलूम अता किए। तो जिसमें इंसान के ऊपर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी जो नेमत इल्म की नेमत है और हदायत की नेमत है, उसका बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही के ज़रिए इल्म दिया, हदायत के रस्ते आपको दिखाए, रहनुमाई की। आप बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। ववजदका आइलन फअगना, और पाया आपको अल्लाह ताला ने आइलन के मानी गरीब फ़कीर, तो अल्लाह ताला ने आपको मालदार किया। और वाक़ई ही आपकी ज़िंदगी की इब्तिदा जो है वो गुर्बत से होती है। कहा जाता है कि आपके बाप की तरफ से सिर्फ शायद एक घोड़ा या ऊँट आपको मिला विरासत में, एक ऊँट शायद, उसके सिवा कुछ नहीं था। यानी गुर्बत फ़क्र फाका था घर में। और इसी तरह से आपका बचपन गुजरता है, क्योंकि अबू तालिब भी आपके चाचा जो है आपके बाद परवरिश की, वो भी गरीब फ़कीर थे, वो भी मालदार नहीं थे। हत्ता कि बालिग होने के बाद जब आप 25 साल की उम्र पर पहुँचते हैं, उससे पहले ही हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके साथ यानी कि कारोबार का यानी कि शुरू करती हैं, और फिर हत्ता कि आपसे शादी कर लेती हैं। और खदीजा रज़ियल्लाहु तआला मक्का की मालदार तरीन खातून थी, बहुत बड़ा माल था उनके पास। तो जब आपसे निकाह होता है हज़रत खदीजा का,
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کے حوالے کر دی، ہر چیز، اپنا پورا مال آپ کے حوالے کر دیا۔ اس طریقے سے اللہ نے آپ کو مالدار کیا، اور اس کے بعد بھی اسلام کی فتوحات جب ہوتی ہیں تو جب مال غنیمت آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح مالدار کرتا ہے اس فقر و فاقہ سے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو آپ کے ساتھ عنایت چلی آ رہی تھی، آپ کی حفاظت کرنے کی، مالی لحاظ سے آپ کو بہتر، آپ کی مہارت بہتر بنانے کی، اور علم و ہدایت کے راستے آپ کے لیے اس میں رہنمائی کرنے کی۔ اس کے بعد میں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب جب خود تم یتیمی کا معاملہ دیکھ چکے ہو کہ یتیمی کیا ہوتی ہے اور کس قدر حقیقت میں اذیتناک چیز ہوتی ہے، تو پھر آپ بھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کرو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ، کسی یتیم کے ساتھ فَلَا تَقْهَرْ، سختی نہ کرو، بلکہ یتیم جس کے ماں باپ یا باپ جس کا اٹھ جاتا ہے، دنیا سے چلے جاتا ہے، وہ شفقت کا، مہربانی کا اور ہمدردی کا حقدار ہوتا ہے، تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے، اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر بلکہ اس سے پہلے ہی آپ کے دل میں یتیموں کی محبت کیا ہوتی تھی، کس انداز سے یتیموں کے لیے آپ کی ہمدردی ہوتی تھی، بلکہ آپ نے امت کو کس انداز سے یتیموں کا خیال کرنے کا اور یتیموں کے حقوق بیان کرنے پر آپ نے توجہ دی۔ اماتے انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جو یتیم کی سرپرستی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اور میں اور وہ جنت میں دونوں ایسے ہوں گے جیسے دونوں ہوئی ہیں۔ اور مختلف حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی جو رہنمائی کی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیموں کے ساتھ جو شفقت مہربانی کا معاملہ ہوتا تھا۔ اما السائل فلا تنہر، اور اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے یا کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں۔ سوال کرنے سے دو معنی ہیں، ایک تو سائل کا لفظ ہم جو اکثر بیشتر سمجھتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا، یعنی خیرات بھیک مانگنے والا۔ تو اگر کوئی مانگنے والا بھی آتا ہے تو تب بھی اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرو، اس کو جھڑکو نہیں، بلکہ اگر کوئی دے سکتے ہو تو دو، ورنہ اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو رخصت کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ کتنے حالات میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، آپ کسی سے قرض لے کر اس کو دیتے۔ مانگنے والا آتا کوئی، آپ کے پاس کچھ دینے کو نہ ہوتا تو قرض لے کر دیتے اس کو، کہ تاکہ وہ خالی ہاتھ نہ جائے۔ مانگنے والوں کے ساتھ بھی، فقیر و محتاجوں کے ساتھ بھی آپ وسلم کی کیا مہربانیاں تھی، کیا شفقتیں تھی۔ اور خصوصاً آپ کا میدان چونکہ علم کا میدان ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا سب سے بڑا، اس کے پاس سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتا ہے۔ اب علم ہے تو لوگ پوچھیں گے، سوال کریں گے، اور ظاہری بات ہے سوال کرنے والے کوئی سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی جاہل ہے، طرح طرح کے ان کے انداز ہوتے ہیں۔ کسی کو آداب کا کوئی پتہ ہے، کوئی آداب نہیں جانتا۔ دوپہر کا وقت تھا، زور سے پہلے آپ سب کے آرام کا ٹائم تھا، کوئی بدبو آتے ہیں باہر سے، آپ کے اپنے آپ کے حجرے کے باہر سے، یا محمد یا محمد، آپ کو آواز دینے لگے۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھے نا۔ تو ایک بدو دیہاتی آیا، آپ کے گلے میں کپڑا ڈالا اور خوب اس کو لپیٹا، مروڑا اس کو، حتیٰ کہ آپ کا گلا گھٹ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ اچھا چاہیے کیا تمہیں بھی؟ کہ تمہارے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے مجھے دو۔ یعنی صدقہ لینے آیا، لیکن صدقہ لینے کا انداز کا یہ ہے۔ تو اس طرح کے واقعات آپ سنو گے، پڑھو گے آپ کی سیرت میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہوتا تھا، اصل وہ دیکھنے والا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت اور شان و مقام تھا، ان سبھی چیزوں کے باوجود اس طرح کی گستاخیاں، اس طرح کی بے ادبیاں، بلکہ اس طرح کی اذیتیں آپ کو دی جاتی، اور ان کے مد مقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ کیا نیکی احسان کا انداز ہوتا۔ تو میں کہ اگر کوئی آپ سے سوال بھی کرتا ہے تو لوگوں کے زیادہ سوالوں سے بھی آپ پریشان نہ ہو، تنگ نہ پڑو۔ اس لیے وہ مسائل، اگر کوئی سوال کرنے والا ہے فلا تنہا، اس کو نہ جھڑکو، بلکہ اس کا سوال کا جواب دو۔ اما بنعمت ربک فحدث، اور جب کہ رب کی جو نعمتیں ہیں ان کو بیان کرو، اپنے رب کی نعمتوں کو حدث یعنی بیان کرو۔
तो रब की नेमत बयान करने का माना क्या है? उसमें भी दो चीज़ें हैं। एक तो अल्लाह ताला की अमूमन जो इंसान पर नेमतें होती हैं, तो नेमतों के एक शुक्र ये भी है कि ज़बान से उन नेमतों का जिक्र करना, अल्लाह का फ़ضل है, अल्लाह का इनाम है, बहुत अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं और नेमतें हैं, समझे ना? तो इस लिहाज से भी अल्लाह की उन नेमतों का जिक्र करना, कि उनको बयान करना कि अल्लाह की नेमतें हैं, कोई मुश्किल नहीं। हालात कैसे भी क्यों हो, आदमी अल्लाह ताला की नेमतों का हमेशा मद्देनज़र रखे, उनको बयान करे। बात कर रहे थे कि अल्लाह की नेमतों को बयान करने का एक तो माना ये कि अल्लाह की नेमतों को ज़बान से उनका इकरार करना कि वाक़ई अल्लाह ताला का फ़ضل है, उसका इनाम है, उसकी नेमतें हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को सुना जाता है, बस मारे गए, कुछ नहीं बचा, बस ख़त्म हो गए, समझे ना? अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री ज़बान से किस अंदाज से की जाती है। तो इसलिए आपसे मत एक आदमी आपके पास आया, देखा कि उसकी हालत बड़ी खस्ता है, फटे पुराने कपड़े हैं, पूछा तो तुम्हारे पास क्या है माल में से? उसने बताया मेरे पास इतने ऊँट हैं, मेरे पास इतनी बकरियाँ हैं, उस वक़्त का जो माल होता है। तो आप कहा कि तुम्हारा ये हाल फिर ऐसा क्यों है? तुम्हारे पास इतना अगर माल है, तुम्हारा इतना ऐसा हाल क्यों है? अब मानते कि अल्लाह ताला चाहता है कि बंदे के पास अगर कोई नेमत हो तो अल्लाह ताला उस नेमत का असर उसके ऊपर देखे, कि बाज़ औक़ात बिला वजह इंसान का अपने आप को इस अंदाज से ज़ाहिर करना कि जैसे बड़ा गरीब फ़कीर है, ये भी अल्लाह की नेमत की नाशुक्री का अंदाज़ है। हाँ, तकब्बुर गुरूर ना हो, फजूल खर्ची ना हो और नमूद नमैश ना हो, हाँ ये चीज़ें गलत हैं। बाकी माकूल हद तक, मुनासिब हद तक अल्लाह ताला की नेमतों को, यानी कि कम रहन सहन के अंदर और खाने पीने के लिहाज से इन चीज़ों के अंदर इन चीज़ों का इजहार होना, ये अल्लाह की नेमत की एक शुक्र का अंदाज़ है। और खुसूसन आप पर अल्लाह की जो नेमत थी, वो हदायत की नेमत, इल्म की नेमत, कि इसको बयान करो, अल्लाह का दीन खूब फैलाओ, लोगों को सिखाओ, ये है जो अल्लाह की इस नेमत का हक़ है। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमतों को बयान करो। अच्छा, इस मौजू पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा मज़ीद बात करना, कि एक हदीस में आप का फरमान है कि अपनी हाजतों को पूरा करने के लिए हाजतों को छुपाने से काम लो। इस्ताईनु अला हवाइजिकुम बिकितमानिहा, से हदीस है कि जो तुम्हारी हाजतें हैं, जो तुम चीज़ चाहते हो, उसको हासिल करने के लिए कोशिश करो कि उसको छुपा के रखो, लोगों को बताओ नहीं। और यहाँ पर अल्लाह फरमाता है कि अपनी अल्लाह की नेमतों को बयान करो। तो फिर दोनों क्या क्या इसमें मुवाफ़क़त है? तो इसमें उलमा कहते हैं कि चीज़ को हासिल होने से पहले आप कोई चीज़ काम करना चाहते हो, तो पहले ढिंढोरा पीट देना में मैं ये कर रहा हूँ, ये चीज़ गलत है। ओके, तरह तरह की नज़रें होती हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, आपको कुछ पता नहीं कि कौन आपकी इस बात को किस अंदाज से सुन रहा है और किसके दिल में क्या आता है, समझे ना? इसलिए आदमी बेहतर है कि अपनी हाजतों को छुपा के रखे, और जब चीज़ मिल जाती है तो फिर उसका मुनासिब तरीके से इजहार करना, ऐसे लोगों के सामने कि जहाँ पर हसद बुग़्ज़ ना हो। हाँ, ये है कि जो अल्लाह की नेमतों को बयान करना है, उनका इजहार करना है, ऐसे लोगों के सामने जहाँ पर हसद बुग़्ज़ ना हो। बिला वजह अपने आप को हासिलों की नज़रों के सामने लाना, नेमतें उनके सामने रखना, अपने आप को हलाक करने के मुताबिक है। और आजकल ये सोशल मीडिया में हो रहा है। हाँ, दस्तरखान पे खाना लगा हुआ है, तरह तरह के खाने लगे हैं, और दस्तरखान उसकी तस्वीर फेसबुक पे चढ़ा दी, और जो खाना खाने वाले सभी अगले दिन हॉस्पिटल पहुँचे होते हैं, समझे ना? किस वजह से? कि कौन किस नज़र से देख रहा है, समझे ना? बच्चा खूबसूरत है, उसकी तस्वीर फेसबुक में चढ़ा दी, कौन किस नज़र से देख रहा है? इसलिए अल्लाह की इस तरह की नेमतों को सरेआम करना, लोगों के सामने बिल्कुल हर आम व ख़ास के सामने इनको फैलाना, ये बेवकूफ़ी हमाकत है। और इस तरह के बाद हमारे काम होते हैं सिर्फ नमूद नमाइश के लिए। ठीक है, तुमको किसी चीज़ पर खुशी हासिल हो रही है तो उस खुशी को तरीके से उसके साथ चलो। इसलिए अल्लाह ताला की नेमतों को बयान करने का जो अल्लाह का हुक्म है, इसका भी ज़ाब्ता है, इसका भी रूल है जिसके साथ इंसान को चलना चाहिए, ताकि नुकसानात से बचे और अपने आप को बिला वजह अपने आप को हलाकत में न डाले। बारक अल्लाह फ़ीक, जज़ाकल्लाह खैर।